चल हमने बेटे Yes. आर्टिकल स्टार्ट Yes. किया कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और उसमें आ गया था हमारे पास p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस pn वेक्टर. ओके, and we know p is capital M is the mass of the body and v is the velocity of the center of mass, then momentum of the body is equal to capital M capital V is equal to mass of object number 1 into velocity of object number 1 plus mass of object number 2 into velocity of object number 2 plus dash dash plus mass of object number n into velocity of object number n. ओके, सो देयरफॉर बेटे हमारे पास आ गया कितना बोलो साहब, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, mv, m vector sorry mv vector. Let you can say let this equation number 1, differentiating both sides with respect to time we get, write down differentiating 1 with respect to time we get d over dt of p vector is equal to d over dt of mv vector, or it is equal to m is constant can be taken outside the differentiation into d over dt of v vector. And what is the time rate of change of velocity? Beta ji hai. So therefore, it is equal to m into acceleration of center of mass. M into acceleration over center of mass. Okay, we know that is what, that is dp over dt. According to second law, we know F external on the system, F external on the system is equal to mass into acceleration. This is equation number 2, and this is what, equation number 3. From 2 and 3 comparing, we get F external is equal to what beta? Yes, m. Bolo shabash. F external is equal to what? dp on into F external is equal to what? dp over dt. If the external, write down this equation number 4. If external force acting on the system or for an isolated system, जो सिस्टम बिल्कुल आइसोलेट होगा उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी बेटा जी, बोलो शाबाश, जीरो. देयरफॉर ये आ गया हमारे पास dp वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू 0. ओके, और डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी की 0 होती है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट. ओके, therefore p vector is equal to constant. Okay, p vector is equal to constant means p vector is equal to m vector, sorry m is not a vector, v vector is equal to constant. अब बेटे अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास तो किसी भी बॉडी का क्या है, ये तो प्राइमरी है क्वांटिटी. ओके, मास कांस्टेंट होगा. देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास of a system when the system is not applied, no external force is acting on the system, is always constant. Is always constant. This is the result. This is the velocity of center of mass. This is the velocity of center of mass. एक बार बेटे दोबारा देखो, कल हमने किया था, डायग्राम बनाया था. ओके, let as shown in diagram or the figure adjoining the system of n particles having masses m1, m2, comma dash dash, comma n, and position vectors r1, comma r2, and dash dash rn. Okay, if their velocities are f1, sorry, if their velocities are if the objects are acted upon by external forces f1, comma f2, comma dash dash, comma fn, then let velocities produced in them are v1, comma v2, comma dash dash, comma vn. Okay,
और वहां से आगे था बेटा हमारे पास P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश इक्वल टू, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी है और जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा। ओके, सो देयरफॉर, और ये आगे बेटे मोमेंटम क्या होता है, m इज द कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी of n particles and v is the velocity of center of mass, then it is equal to momentum of body number 1 mass of body number 1 into its velocity plus momentum of second plus dash momentum of this. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटे दोनों केसेस से p is equal to mv. okay, now differentiating both sides, d over dp over dt is equal to d over dt of mv. अब m जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, जो कांस्टेंट होगी चीज जो तोड़ी थोड़ी जा सकती है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। ओके, सो m into d over dt of v. ओके, सो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर इसको और इसको देखें अगर तो हमारे पास आ गया d और p और dt is equal to ma, लेकिन सेकंड लॉ बोलता भी आप जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है F एक्सटर्नल then it is equal to mass into acceleration। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर कंपेयर करें तो इनका राइट हैंड साइड क्या सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड को ये क्या है, ये भी तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। This is also Newton's second law, which states that rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force, and the change in momentum that always takes place in the direction of applied force. If external force, अब वो जो सिस्टम था बॉडी का हमने माना हुआ that system is isolated. आइसोलेट का मतलब समझ गए ना। अब देखो इस दुनिया में हम बोलते हैं ना भी फलाना बंदा आइसोलेट हो गया, वो सुशांत कुमार था जो हीरो भी आइसोलेट हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। हम देखो एक दूसरे से तो हम आइसोलेट हो सकते हैं नजरों से, मैं अगर अपने घर में छुप जाऊंगा तो मैं आप सबसे आइसोलेट हो जाऊंगा। ओके, ये जैसे कि आप बोलते हैं आजकल कोविड, किसी को कोरोना हो जाए तो उसको आइसोलेशन में डाल दिया जी, आइसोलेट कर दिया घर में, अलग कमरे में रख दिया। ओके, लेकिन आइसोलेशन देखो बेटा मैं जहां मर्जी चल जाऊं इस यूनिवर्स में, लेकिन ग्रेविटी आपकी और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना। ओके, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ठीक है वो इक्विलिब्रियम में होती है, अदरवाइज उसके सिवाय मेरे को ऊपर कोई फोर्स नहीं है ना। तो जब मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, आई एम ए सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मेरी आईज है, मेरा नोज है, मेरे ईयर है, कान वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, जितने मर्जी टोटे कर लो, दैट इज ऑल आर एन पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल हैज इट्स ओन मास, इट्स ओन व्हाट पोजीशन वेक्टर। ओके, अब अगर मेरा नाक जो है तो मेरा नाक यही होता है हमेशा ही है ना, ऐसा थोड़ी होगा कल को यहाँ पे आ गया, कंधे पे आ गया, ठीक है, परसों सिर पे चला गया। तो इनकी जो पोजीशन वेक्टर दैट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ओके, और रिजिड बॉडी का हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो रिजिड बॉडी हमने डिफाइन की थी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम कोई भी फिजिकल प्रेशर डालें या फोर्स लगाएं तो उस बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो चेंज नहीं होता। तो देयरफॉर बेटे आ गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स और द सिस्टम इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन dp over dt is equal to जीरो। और डिफरेंशिएशन अगर जीरो होगी किसी चीज की, जैसे मैंने कहा भाई ये मास जो है किसी बॉडी का 3 किलोग्राम है, तो मास इज क्या है, दैट इज एलिमेंट्री सॉरी दैट इज प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। वो आपको मैंने पहले बताया था, इस दुनिया में जो भी कोई बॉडी आती है उसमें कम से कम 3 चीजें तो होती हैं, 7 चीजें होती हैं वैसे, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये 7 चीजें हर चीज में है दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो चीजें होंगे, लेकिन सातों के बारे में हम डेली देखो बात करते हैं, इवनिंग अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, तो हम किसी भी बॉडीज के या किसी भी बारे में मास, लेंथ और टाइम के बीच में हम जनरल सी बात करते हैं ना। कोई अनपढ़ है वो किसी के बारे में बात करता है, कोई पढ़ा लिखा है वो किसी के बारे में बात करता है। ओके, होती तो बाकी वो भी है ठीक है, लेकिन चार जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम कॉमनली डिस्कस नहीं करते, इसलिए मास, लेंथ और टाइम को हम बोलते हैं बेसिक। ओके, तो देयरफॉर बेटे इसका मतलब हो गया, अब जो मास है वो डिफरेंशिएट की नहीं जा सकती, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो भी कांस्टेंट है। अब अगर मास चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मान लो मास 2 है, वेलोसिटी 2 है, ओके, तो कितना हो गया 4। मास 1 है, वेलोसिटी 4 है तो भी 4 हो गया। अगर मास 4 है, वेलोसिटी 1 है तो भी 4 हो गया। ओके, और मान लो मास 8 है, वेलोसिटी हाफ है तो भी 4 हो गया। लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फिर v भी कांस्टेंट रहेगी है ना। ओके, राइट डाउन आंसर बेटा। दिस शोज दैट
This shows that the center of mass of the system. This shows that the center of mass of the system moves with a constant velocity. Moves with a constant velocity if no external force. If no external force acts on the system, that is F external ext is equal to 0. ब्रैकेट में लिखना बेटा, ओके, that is F external is equal to 0. अब बेटे देखना, यस एग्जाम्पल देखना इसके, ठीक है, एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखना, आपको सब कुछ आता है लेकिन पता नहीं आपको आता है आपको। राइट डाउन एप्लीकेशन, इसके एग्जाम्पल्स, डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, decay of radioactive nucleus or explosion of a bomb, explosion of a bomb, bomb जरूरी नहीं है एटम बॉम्ब हो, ओके, कोई भी होगा जो दिवाली वाला होता है वो बॉम्ब भी, ओके, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखो बेटा इधर लिसन, yes, suppose करो बेटा R radon है, okay, radioactive element है radon and it is moving with velocity v. ये जो radon है Rn, it is moving with velocity v, और जब ये radon यहाँ पे पहुंच गया तो ये एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया और ये दो पार्ट्स में टूट गया बेटा, ओके, दो पार्ट्स में टूट गया, एक बन गया हीलियम और दूसरा बन, सॉरी रेडॉन नहीं है, रेडियम है, रेडियम, ओके, एक बन गया क्या हीलियम, दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, एक बन गया आपका क्या हीलियम, दिस इज योर हीलियम, और ए जो है बेटा ए क्या आ गया आपके पास, ए बन गया आपके पास रेडॉन, ओके, और इनका देखना लिसन, जब ये यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ उससे पहले इसका रेडियम का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में था और वो बिल्कुल इस वेलोसिटी से जा रहा था इन दिस डायरेक्शन, ओके, देखना बेटा जैसे इसका एक्सप्लोजन होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास अभी हमने पढ़ा उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट होगी। अब अगर इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर को चला गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। अगर वो रेडॉन के साथ आ गया तो भी कांस्टेंट नहीं रही। अब रेडॉन जो है वो भारी है और हीलियम जो है लाइट है, तो इसलिए हीलियम जो है इस लाइन से क्या हो गया, बोलो शाबाश, दूर चला गया और भारी होने के कारण रेडॉन जो है वो क्लोज रह गया। लेकिन ये अपनी मर्जी से दूर नहीं जाता, ये उतना ही दूर जाएगा और ये उतना ही नेड़े रहेगा, लेकिन इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन के ऊपर चलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ये जो टूटेगा बेटा, देखो ये जो टूटेगा इसका मतलब ये नहीं है कि रेडॉन जो मेरी साइड को आ गया, हीलियम आगे को चला गया, नो, इसको रूल फॉलो करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास को, जिस डायरेक्शन में चला हुआ था बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन भी उसी में रहेगा, नो डाउट। अब एयर में आ गया क्योंकि इसके तो दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, और निचले वाला भारी है इसलिए सेंटर ऑफ मास इसके क्लोज है और दूसरे से दूर, ओके, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी लाइन के ऊपर चलेगा, ओके, ओके बेटा जी, यस सर। यस सर। ये तो था लिसन, ये तो था जब इसकी वेलोसिटी थी। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 0 होती, ये आपके पास क्या है रेडियम, अगर इसकी वेलोसिटी 0 होती तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी 0 रहे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसलिए होगा क्या, बोलो सास, हीलियम जो होगा वो दूर चला जाएगा और इसी लाइन के ऊपर रेडॉन जो है वो इधर को आ जाएगा, ओके, लेकिन रेडॉन जो है वो हैवी होने के कारण इससे क्या होगा, कम दूर जाएगा और जो हीलियम है वो ज्यादा दूर चल जाएगा। लेकिन फिर भी देखो दोनों का, हीलियम और रेडॉन का अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे था जहां पे पूरा एक्सप्लोजन था, ओके, यस सर।
अच्छा अब Yes, सुनो और sir. मेरी बात, लिसन। Yes. हम जो बम करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम अनार करते हैं और अनार के बाद क्या होता है, पटाखा होता है। तो जो पटाखा होता है ना उसको अनार का, वो बेटे ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे 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 जाता है, सारे के सारे उसके फ्रेगमेंट्स ऐसे जाते हैं। ओके, या आपने आतिशबाजी की होगी ऊपर ना, ऊपर जाने के बाद आतिशबाजी देखो ऐसे जाती है, इधर देखो ना, आतिशबाजी ऐसे जाती है। ओके, ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आतिशबाजी यहाँ मिलेगी और ऊपर फ्रेगमेंट्स होगा उसके ना। तो इसके जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सीधे जाते बेटा नीचे, नो, क्योंकि इसका जो पाथ था वो पैराबोलिक था बिफोर एक्सप्लोजन, इसलिए आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या रहेगा, पैराबोलिक। इसलिए इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े जो है, चिंगारियां, वो ऐसे ऐसे आएंगी। ओके, ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे रहे, इस पाथ के ऊपर। ओके, नो ओके है। सर एक बार वेलोसिटी जो 0 है वो फिर से रिपीट कर दो। तो बेटा देखो, ये जो रे डाउन है ना, या बॉम्ब जो है वो स्टेशनरी है, समझ गए, और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो लगाई नहीं, मैंने तो जस्ट इसकी बिग को आग लगाई। आग लगाना को फोर्स थोड़ी होती है, आग तो मैं अगर इस पैन को लगा दूंगा थोड़ी फटेगा ना, आग लगाना फोर्स नहीं है। लेकिन जब वो चिंगारी बिग से अंदर चली गई तो उसके बीच का जो बारूद था, वो बारूद है ही एक ऐसा मटेरियल है, तो उसका छोटी सी क्वांटिटी का भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम बन जाता है जब वो जलता है ना। अब जो फ्रेगमेंट, सॉरी, अब जो आपका क्रैकर है, उस क्रैकर के बाहर देखा होगा आपने, बहुत सारे थ्रेड्स जो होते हैं वो लपेटे होते हैं ना। जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे उतने ज्यादा इकट्ठे टूटेंगे, और जितना जोर से टूटेंगे ना, उनके हर एक रेस से टूटने की आवाज आएगी, उतना ही धमाका होगा ना। आप 50 रुपए वाला बम देख लो, आप 100 रुपए वाला बम देख लो, सुतली बम जो होता है। ओके, आप उसके बीच में अगर काट, नए को काटना अपने आप में देखना, दोनों में बारूद जो होगा सेम ही होगा। लेकिन जो 100 रुपीज वाला, उसमें थ्रेड की जो लेयर होगी वो 5-4 लेयर एक्स्ट्रा होंगी, क्योंकि उसके बीच में जब बारूद का गैस बनती है तो वो गैस एकदम कहीं से निकल नहीं पाती, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है भी जो थ्रेड्स होते हैं वो उसका वॉल्यूम का प्रेशर नहीं झेल पाते, इसलिए वो सारे के सारे एट ए टाइम टूट जाते हैं। उनके टूटने का आपने देखना, घर में जाके, घर में बैठे हो सॉरी, आपने देखना, मतलब एक ना जो स्विंग मशीन होती है उसका थ्रेड लेना नहीं, और उस थ्रेड को ना क्लोज जाके दोनों हाथों से कान के नजदीक तोड़ना, उसको आवाज आएगी ना। फिर उसके 3-4 फोल्ड कर लेना, फिर इसको तोड़ना, एक तो जोर लगेगा ना, लेकिन जब आवाज आएगी तो क्या होगा, ज्यादा आवाज आएगी। ओके, Yes, Yes, sir. sir. और जो 5 रुपए वाला पटाखा होता है या 10 रुपए वाला होता है, उसमें थ्रेड छोटे लगाया होता है, उसमें पेपर लपेटे होते हैं, देखा होगा आपने ना। अब जितने Yes, ज्यादा sir. पेपर, जितने ज्यादा Yes, sir. पेपर होंगे वो वैसे टूटेंगे, देखा होगा आपने, 2 पार्ट में हाफ सिलेंड्रिकल में टूट जाते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा देखो, अब बिफोर कोलिजन ये जो था ना रेडॉन, या ये बॉम्ब था, रेडॉन को छोड़ो बड़े, इसका बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी। तो अगर वेलोसिटी 0 है, बाद में कुछ थोड़ी होगी, 0 इज नॉट इक्वल टू 2, 3, 4 और 5 है ना, 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन की जो वेलोसिटी होगी 0 रहेगी, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। ओके, तो फिर इसके जो 2 टुकड़े वो फिर कहां को जाएंगे, अगर वो दोनों ऐसे चले गए तो वेलोसिटी तो हो गई, तो इसका मतलब इसके दोनों जो टुकड़े हैं वो इसी लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और वो कितने दूर होंगे ये डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम लगी है, दोनों टुकड़ों में जब बम फटा होगा तो प्रेशर तो जो क्या है, फोर्स सेम है, लेकिन हीलियम का मास जो है वो कम है और रेडॉन का मास जो है वो क्या ज्यादा है, इसलिए हीलियम ज्यादा दूर चली जाती है और रेडॉन जो है नेड़े रहता है, लेकिन चलेंगे दोनों इसी लाइन के ऊपर। और ये भी नहीं होगा कि हीलियम थोड़ा दूर चले गई, नो, अदरवाइज हीलियम ही तो चले गई तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी आ गई, तो फिर ये लॉ फेल हो गया हमारा ना। Therefore, for a system of n particles, if the system is not acted upon by some external force, then the center of mass always move with constant velocity. If the initial velocity of the system is 0, then the final velocity of the system will also be 0, and so on. Any doubt? No, sir. Okay.